Hello guys, welcome to today's video. So today's topic is how to be a high value person, how to be a high value masculine man. So as a masculine man, what is being high value? First of all, we will define that. You know, masculine space में या फिर manosphere में हम ये देखते हैं कि high value is often termed as like 50 millions in the bank, private jet, sexy body just like me. Sin of pride, huh? So as a masculine person, that's not the thing you should be focusing on that, but that's not the whole picture of being a high value man, you know. अगर तुम्हारे पास 50 मिलियंस है बैंक में और तुम मर्डर कर रहे हो किसी का, so how is that मतलब high value man? So I will discuss and point out the points कि क्या तुम्हें हाई वैल्यू बनाता है, एक हाई वैल्यू मैस्कुलिन मैन बनाता है. सो वी as men have this like emotional control over ourselves more than females, like 10 times समझ लो ना. सो क्या बोल रहा था मैं? सो वाई आर वी लाइक अट्रैक्टेड टू spiritual persons like Osho, Sadhguru, Chat Guru? पीजे भाई. Why are we like attracted to them? Gautam Buddha, Krishna ji, because they are so मतलब detached from the world, so emotionally stable, So I'm gonna discuss that and I'm gonna tell you what makes them high value. Like high value हो तो भाई people will be gravitated to you, So to be high value you should have emotional stability या फिर emotional control over yourself. So how can you be emotionally strong? How can you be emotionally stable? So Christianity में, या आई एम टेकिंग क्रिश्चियनिटी एज अ वो, गीता में भी लिखा हुआ है ये सब, गौतम बुद्ध ने भी बताया ये सब, पर इट्स लाइक पॉइंट बाय पॉइंट ना. सो सबसे पहले है, सो इफ़ यू मतलब डोंट डू दिस थिंग्स, इफ़ यू डोंट डू दिस थिंग्स, like you are already your best self if you remove toxic things or toxic people from your life, So remove these things. These are called 7 deadly sins. बहुत सुना होगा इनके बारे में. So they are like sin of lust, sin of pride, sin of gluttony, sin of envy, sin of sloth, sin of wrath, sin of greed. So सबको मैं explain करूँगा. So sin of lust तो तुम्हें पता ही है, masculine man हो तो तुम्हें पता ही होगा sin of lust. That's like obviously a bad thing, I'm gonna not discuss that further. Bhai, you have struggled. Every man has struggled from there. I still struggle. I can sit here and say I do not struggle, man, I'm like perfect, I'm a YouTuber. तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ मैं, तो मैं perfect हूँगा? नहीं, मैं नहीं हूँ. I still struggle with sin of lust. एंड सेकेंड इज sin of pride जो कि मुझे लगता है मेरे में था. अभी I'm like more humble with myself, with my achievements, with my ability, क्योंकि मुझे पता है जब से मैंने मार खाया भाई फर्स्ट स्पारिंग में, तब से मैं बाय fuck me, no fuck me. So sin of pride is मोस्ट डेंजरस, क्योंकि वो ऐसा सीन है ना भाई कि और सीन पे लेके जाएगा तुम्हें. मतलब मैं तो भाई मुझे वर्कआउट करने का ज़रूरी नहीं भाई, मुझे बॉक्सिंग, मुझे लाइट स्पारिंग नहीं, डायरेक्ट मैं हार्ड स्पारिंग करूँगा भाई, मुंह तोड़ दूंगा उसका. मैं फ़ोटो भी शेयर कर सकता हूँ, अभी तुम्हें दिख रहा होगा फ़ोटो. सो सिन ऑफ प्राइड वो सबसे डेंजरस है भाई. यू विल बी हम्बल लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा. Sin of gluttony is like excessive pleasure, like excesses
excessive drinking, excessive binge eating, कुछ भी मतलब excessive pleasure, you know, excessive gaming, excessive insta, कुछ भी समझ लो, that's like फालतू, you know, waste of time. Sin of envy, I've not suffered with this, like totally. मुझे कभी मतलब jealous हुआ ही नहीं भाई. That's like female thing, you know. Okay, I'm not saying females are bad, even though they are. Joking man. Sin of envy, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी ज़्यादा, क्योंकि वो दैट्स लाइक अंदर तुम्हारा होना चाहिए कि क्यों करूँ भाई मैं जेलस. मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़. अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम्हें वो मिल जाएगा. मिल भी नहीं गया तो क्या हो जाएगा भाई, दुनिया सुंदर नहीं दिखने लगेगी. वो लड़की मिल गई तुम्हें भाई, क्या हो जाएगा तो भाई. वो कार मिल गया भाई, 1 महीना के लिए खुश भाई, उसके बाद लाइबिलिटी बन जाएगा वो. पैसा भरो भाई शो ऑफ के लिए बस. इट्स लाइक सिन ऑफ एनवी भाई. सबसे मुझे मतलब क्या है भाई, क्यों स्ट्रगल करते लोग करते हैं. आई एम नॉट लाइक टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, बट देखो वो अपने से होता है. sin of sloth is like lack of ambition, like excessive sloth, मतलब पड़े हुए वो बेड में कुछ दिन भर कुछ काम वो नहीं, एम्बिशन नहीं लाइफ में, कुछ क्या डायरेक्शन नहीं है तुम्हारा लाइफ में. इससे मैंने 9th क्लास तक वो किया था, स्ट्रगल किया था. तो sin of sloth इज़ लाइक ईजी मैन, मतलब मोमेंटम बढ़ाओ. मैंने जैसे बोला था डिसिप्लिन क्रॉस मोटिवेशन टिक, वैसे ही होता है भाई. sin of sloth इज़ ईजी टू ओवरकम. ईजी भाई, ज़्यादा मत सोचो. एनवी, स्लॉथ, ग्लटनी, ये सब ईजी है. sin of lust and sin of pride इज़ लाइक मतलब every of this, every sin is like dangerous, but sin of pride and sin of lust is like dangerous भाई, dangerous. especially sin of pride भाई, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम एक sin कर रहे हो. लस्ट में तो तुम्हें मतलब lust is like dangerous, but lust is like तुम्हें पता रहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है भाई. और sin of pride में मैं तो भाई नंबर वन हीरो. एंड मेरे फ्रेंड्स, sin of wrath इज़ लाइक मैं कभी स्ट्रगल करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कभी. sin of wrath ऑब्वियसली मतलब एंगर, एक्सेसिव एंगर. इसे ओवरकम करने के लिए मैं ना भाई एक छोटा वीडियो बना दूंगा, सब sin of प्राइड, sin of लस्ट से कैसे वो ओवरकम होता. 7 वीडियो बना दूंगा भाई. मैं भी खुश, तुम भी खुश. महीने भर का मुझे कंटेंट मिल गया और तुम्हें अपना तोड़ मिल गया. sin of wrath इज़ लाइक एक्सेसिव एंगर. सो इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा. इससे मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता हूँ. और sin of greed, इससे भी मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता हूँ. मतलब कितना ग्रीडी हो तुम, मतलब लालची. ओके भाई, मैं फीमेल्स को मतलब हेट नहीं करता, पर sin of gluttony, envy, sloth, wrath, greed, प्राइड नहीं होता है उनमें ज़्यादा. sin of lust भी होता है, पर उधर नहीं जाएंगे हम. सो दीज आर लाइक फेमिनिन फीचर्स, लाइक फेमिनिन शिट. अगर तुम डिसएग्री कर रहे हो तो तुम एक फीमेल हो, और या फिर एक तुम simp हो, you know, you don't know anything about females. So as a masculine person, do not do these things. Okay bhai, you will be high value at the end of the day if you don't do this. So yeah, today's video ends here bhai. Okay, love you, big puchi.